Who is Dattada here? Who is Dattada? He is an amateur scientist. Amateur scientist. Amateur scientist he is. That means amateur means non-professional scientist he is. And Yes. he can't stay with whom? With which he can't stay, beta? He can't stay with the okay. Datta is not so curious of the work which it is done in the house itself, but he is very, very curious about the things which it is going on the sky itself, right? In the sky itself. So he was meticulous, he was careful in his observations. ठीक है, तो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक फेंट स्ट्रेंजर वहां पे दिख रहा था ऑर्बिट पे, तो वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि दिस इज अ न्यू कॉमेट इटसेल्फ, एंड वी पीपल नो दैट कॉमेट ऑब्जर्व आफ्टर 5 or 10 years only. Okay, next, yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier. It did look like a new comet. So kahin na kahin he is very, very prompt and he is very without mistake keh rahe the ki that it was like a comet only, and I have discovered a new comet. अब देखो 2 दिन के बाद after 2 days later the आनंद बजार पत्रिका came out with the news. तो 2 दिन के बाद क्या होता है, आनंद बजार एक पत्रिका का नाम है, एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें ये आता है, देखो क्या आता है, Calcutta man discovers new comet. What is from our special correspondent, means special reporter. One special reporter, he was saying that Kolkata man has been discovered a new comet itself. Shri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta. तो यहाँ पे उनका नाम लिया गया था, किसका नाम लिया गया था, मनोज दत्ता का, जो कि न्यू रेसिडेंट, जो नॉर्थन आउटस्कर्ट एरिया में, आउट एरिया में रहते हैं, कहाँ पे, कलकत्ता में. अभी जो हम कोलकाता कहते हैं उसी को पहले कलकत्ता कहा जाता था. Has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics. तो लास्ट 2 रातों तक उन्होंने देखा था वो कॉमेट को, और उन्होंने ये न्यूज़ है ना किससे शेयर किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा गया है IIA. ओके, at Bangalore, and this institute, where it is in Bangalore itself. Out of its whereabouts, the Indian Institute of Astrophysics run a 90-inch telescope. ये सब तो ठीक है, पर जो IIA के पास जो टेलीस्कोप था वो 90 इंच का था. पर what about मनोज दत्ता? How many inch of telescope it was? It was only 8 inch. We have discussed in the story itself, isn't it? और जो 90 इंच का टेलीस्कोप था वो पूरे एशिया में, it was the biggest telescope at कवलूरू. अब ये कवलूरू कहाँ पड़ता है, ये एक छोटा सा गांव है, विलेज है तमिलनाडु में. ठीक है, तो if it confirms Datta's finding, it will be the highest point in his lifelong career in amateur astronomer. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये बात सही निकलती है, कि ट्रू निकलता है कि वो न्यू कॉमेट डिस्कवर कर दिए गए हैं, इस 90 इंच के टेलीस्कोप से पता लग जाएगा. अगर ये बात सही निकलता है तो ये उनके जो लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, किसमें, इन बिकमिंग द बिगेस्ट amateur non-professional astronomer itself. Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. तो obviously यहाँ पे दत्ता के जो वहाँ पे affectionate थे, जो co-fellows थे, relatives थे, they were all just telling that after few months this comet can be seen through the naked eye itself. We can see through our eye also. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope.
तो ओवरऑल जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है, दिव्या को जाता है ना, दिव्य चक्षु को जाता है ना। ओवरऑल क्रेडिट किसको जाता है बेटा, इट गोज टू दिव्य चक्षु। यस, जिसको वो क्या बुलाते थे, Excuse me, दिव्या। ma'am. Could you explain the last line again? यस बेटा, next. So at the last he says that overall credit goes to Divya. Okay. Thereafter it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. So in those days one thing used to be done, that whoever discovers a new comet, they used to give the name of that particular comet itself. जो साइंटिस्ट है ना डिस्कवर किया करते थे जिस कॉमेट को, उनका नाम है ना, just beside to that comet they used to write itself. So overall उनको रिकॉग्निशन मिलता है न्यू नेम से, वो है कॉमेट दत्ता। ठीक है, जो वो कॉमेट, न्यू कॉमेट जो डिस्कवर किया जाता है वो किसके नाम से डिस्कवर होता है बेटा, दत्ता के नाम से, क्योंकि दत्ता ओनली डिस्कवर दैट कॉमेट इटसेल्फ, राइट। So for the IAA confirmed the finding and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discovery. तो IAA, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IAA जो है ना, वो सारे वर्ल्ड वाइड से है ना कम्युनिकेट करते हैं, और ये न्यूज है ना, ये इंफॉर्मेशन है ना, उनसे शेयर करते हैं, और ओवरऑल ये रातों रात क्या है, वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं, और साथ ही में ये न्यूज सब जगह वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेप्टेड प्रैक्टिस द न्यू कॉमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। तो जैसे जो कोई अगर खोज करता है न्यू कॉमेट की, तो उसके साथ ही में जो डिस्कवर करते हैं उनके साथ उसका नाम है ना जुड़ जाता है। दैट इज व्हाट हियर दे आर सेइंग। नेक्स्ट, this brought it unwelcome publicity to the introvert दत्ता दा। अब यहाँ पे कैलकाटा में क्या कहते थे, बड़े लोगों को कहते थे, बोलो, दत्ता दा कहते थे। दा का मतलब क्या है, बड़े भैया, यानी कि रेस्पेक्टफुल वर्ड है। ठीक है, तो वहाँ के लोग है ना उनको, उनके रिलेशंस, उनके रिलेटिव्स जो थे वो दत्ता दा कहते थे। ठीक है, ये दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी, और ये सब है ना दत्ता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कोई है ना इस तरह वो पॉपुलर हो जाए, वो चाहते नहीं थे। और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है, वंस ही ऑक्यूपाइड देयर ओन इंटरेस्ट, तो ऐसा उनको फील हो रहा था कि कोई है ना उनका खुद का, ये सब उनका इंटरेस्ट था, वो चाहते नहीं थे कि मैं फेमस हो जाऊं ये वगैरह वगैरह, इट वाज जस्ट लाइक एन इंटरेस्ट। ठीक है,